डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। Hi kids! समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से Raj, I got your doubt. This is your answer. समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hello everyone, very good evening to all of you, and I welcome you all in Vedantu. And this is a session based on the Newton's laws of motion, right? The art of solving problems on Newton's laws of motion. So first of all, let me introduce myself, guys. My name is Gaurav Kumar Gupta. I have done my mechanical engineering from NIT Rourkela. And yes, I am the physics teacher here, the physics master teacher here, right? So hope we'll learn a lot of new things in this session, isn't it? Chalo, so let's move ahead, guys. शुरू करते हैं क्लास. So first of all, guys, before starting about physics, talking about physics, I want to talk about NEET slightly. There are some myths, right, which I want to bust actually. Okay, so see, guys, this is the NEET. You can see, right, 3 pillars are there. Now what are those 3 pillars, guys? देखो ध्यान से. What are those 3 pillars? Yes, so physics, biology and chemistry, isn't it? So if you want to crack NEET, जो यहाँ पे ऊपर है ना, if you want to crack this, first of all, you have to be very good in physics, biology and chemistry. Now, few of the students have this myth कि वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है, biology का, chemistry is also having 25%, तो physics क्या थोड़ा weak हो सकता है? Let me tell you guys, not possible. If you want to get a good college, a good rank, you need to score very good marks or without physics. Not at all possible. Okay, so today in this session I'll be telling you कि physics में what we have to do, what should be our approach, right? Because see, the problem solving approach in physics is slightly different from biology and chemistry. Okay, so we are going to talk about all these things. But first of all बहुत ध्यान से देखना, this is very important. Okay, see this thing, ये क्या है? What is this, guys? दिस इज द बेस, इजंट इट? ये बेस है. ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा अभी है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर देखा आपने अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर जो ये नीट का स्ट्रक्चर आपने देखा, इजंट इट? दिस इज द बेस ऑफ इट. नाउ जस्ट इमेजिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, व्हाट विल हैपन, गाइस? सारा स्ट्रक्चर धड़ाम से नीचे, इजंट इट? So first thing, guys, in any subject, not only in physics, in any subject, your base has to be very, very, very strong, okay, which is fundamentals, isn't it? So you should be clear with all the fundamentals, right? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका वेटेज देख लेते हैं. Though you will be knowing this, I know already, ठीक है, तुम्हें सब कुछ पता होगा, but फिर भी ठीक से. So 25% is for physics, right? यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 25% is for physics. Sorry for that. Yeah. ठीक है, 25% फॉर फिजिक्स, 50% वेटेज फॉर बायोलॉजी, है ना? बायोलॉजी में आपका वेटेज कितना है? 50% है. एंड देन फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो यू हैव 25%. नाउ दिस काइंड ऑफ मेक्स यू थिंक कि सर फिजिक्स में तो सिर्फ 25% ही है. बट आई टोल्ड यू, राइट, यू नीड टू गेट वेरी गुड मार्क्स इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मेडिकल कॉलेज, इजंट इट? तो हम क्या बोलते हैं फिजिक्स को? आई कॉल द बॉटलनेक. For every NEET aspirant, medical aspirant, I have seen this pattern in my career कि bottleneck subject जो होता है that is physics, right? What do we mean by bottleneck? देखो, यहाँ से आप इसको बाहर निकालना चाहते हो, right? तो यहाँ पे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ से यहाँ तक आ गया बाहर, isn't it? Sorry, but यहाँ पे, right, bottleneck, ये सबसे छोटा एरिया होता है. Now it is very difficult to come out from here. I'll not say difficult, but ये एक mentality बन जाती है कि यहाँ से बाहर आना मुश्किल है. And that can be the case with most of the NEET aspirants because थोड़ा mathematics involved होता है, guys, right? And some visualization is required. But now, because you are in Vedantu, you are watching the lectures, our aim is to break this bottleneck. I'll tell you how we are going to do that, right? सब कुछ मैं बताऊंगा. But for success, if you want to get success in your NEET examination, सबसे पहले you have to break this bottleneck. और हमारा bottleneck क्या है, guys? Physics, right? I know you guys are waiting for physics lecture, right? I have seen that in comments. YouTube में you have shown a lot of love.
बट या यू आर अ बिट वरीड अबाउट फिजिक्स इन नीट, आई नो दिस राइट. सो सबसे पहले तो हम इस बॉटल नेक को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, isn't it? So guys, be with me, right? हम आगे बढ़ेंगे and in this Vedantu is going to help you out, right? So see, because when there is a will, there is Vedantu, isn't it? So because we are showing you some way, this is Vedantu. चलो, so देखो guys, what we are going to do today, Newton's laws of motion, as I told you, isn't it? इसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे because this is not a topic in which a lot of revision is required. थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे and then we'll be going to solve the problems, right? So चलो ये let's start, पहले ही आ गया गलती से, चलो पर ठीक है. Okay, so let's start guys, right? First of all थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं सबसे पहले तो, जैसा हमने अभी बात करी. Third law of motion, isn't it? Third law of motion. So what is third law of motion guys? क्या होता है इसमें? एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं हम, isn't it? We talk about action and reaction. So देखो ये बेचारा ऐसे खड़ा है, right? Plank पे, he is standing here. But now plank is supported by these two, you can say यहाँ पे जो जमीन है, isn't it? यहाँ से supported है. But this is so weak, पता चल रहा है अभी हमें ना. So let's say it is stable first of all. अभी तो मान लो ये stable है. तो अगर ये stable है, then what is happening? Whatever action is there, right? ऐसे नीचे की तरफ, that is getting balanced by the reaction force from this, right? Earth is applying the reaction force, isn't it? Same thing is happening here also. जो भी यहां से action है, यहां से reaction लग रहा है, and this system is in equilibrium, isn't it? तो सीधी सी बात है, action का reaction equal and opposite force, Newton's third law of motion, isn't it? इसमें कुछ ज्यादा बात करने की वैसे जरूरत नहीं है, but what will happen अगर ये जमीन टूट जाए, right? यहां से, then what will happen? This whole system will come down and there will be no more equilibrium, right? So let's talk about equilibrium then. ये equilibrium क्या होता है? So see, this friend, there are two friends, right? So ये गिरने वाला था, he is just holding him, right? His hand. तो यहाँ पे if I talk about the forces and all, then what is happening? इसका कुछ weight होगा, isn't it? mg acting downwards, right? Who is balancing that weight guys? कौन balance कर रहा है? Exactly, ये बंदा जो खड़ा है यहाँ पे, isn't it? He is applying a force in this direction. So in this situation, I can write कि जो net forces हैं, right? The net forces, they are equal to 0. कोई भी net force system पे act नहीं कर रहा है, isn't it? Net force, net external force is 0. तो system is in equilibrium. तो हमारे लिए mechanical equilibrium का क्या मतलब है? नेट फोर्स इज जीरो. बट दिस इज ट्रू अप टू न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन जब आप रोटेशन करोगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. बाय द वे, आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ओनली, राइट? इफ यू वांट सम अदर टॉपिक, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके? या सो व्हेन वी विल बी डूइंग रोटेशनल मोशन, हम ऐसा भी बोलेंगे कि नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, राइट? सो ठीक है, वो बाद में देखेंगे, फॉरगेट अबाउट इट. पहले तो यहां पे फोकस करते हैं. नेट फोर्स जीरो है. चलो अब मान लो ये जो दोस्त था, दोस्त के जैसा दिख तो रहा था, पता चला दुश्मन निकला वो, राइट? एंड ही लीव्स, राइट? इसने छोड़ दिया इसको, तो क्या होगा? देयर विल बी अ नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना? क्योंकि अब ये वाला फोर्स तो लग नहीं रहा. देयर इज अ नेट फोर्स, isn't it guys? देयर इज अ नेट फोर्स, और ये अब मूव करना शुरू कर देगा, isn't it? सो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वहीं से आता है, isn't it? जब तक कोई नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा, इट विल नॉट मूव. When there is some net force, it will start moving. Momentum will change, है ना? Momentum will change and force is given by rate of change of momentum, dp divided by dt. ये y क्यों लिखा हुआ है? Because it is in y direction. ये पूरा मोशन जो मैंने बताया ये y डायरेक्शन पे है, राइट? सो वेरी स्मॉल थिंग. और मोमेंटम क्या होता है गाइस? मास टाइम्स द वेलोसिटी, राइट? इफ यू विल टेक मास टू बी कांस्टेंट, राइट? मास टू बी कांस्टेंट, देन यू विल गेट मास इनटू एक्सेलरेशन. ये कहां से आ गया? dp कैन बी रिटन एज dmv. मास बाहर ले लो, राइट? इसको ऐसा लिख सकते हो dmv. टेक द मास आउटसाइड बिकॉज दैट इज कांस्टेंट, तो अंदर क्या बन जाएगा? dv डिवाइडेड बाय dt. ये dt भी तो है ना नीचे, isn't it? So dv by dt is the acceleration, isn't it? चलो बढ़िया, great. I know you know these all things, right? चलो ये प्रॉब्लम करते हैं अभी, ठीक है? सबसे पहले read the question guys. Three forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v. These forces are represented in magnitude and direction by three sides of a triangle ABC. तो देखो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, isn't it? ये A, B और ये C, right? So he is asking that what happens to the velocity of the particle. पहला ऑप्शन क्या है? Remains unchanged. दूसरा है less than v, मतलब डिक्रीज हो जाता है वेलोसिटी, राइट? थर्ड है greater than v, and what is the fourth option guys? ठीक है, वो कुछ भी है, डायरेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स B to C.
ठीक है. सो जस्ट थिंक गाइस कि दिस लुक्स वेरी सिंपल, इट इज सिंपल ओनली, आई कैन टेल यू, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड, राइट. इफ यू आर गुड विथ योर वेक्टर्स तब तो तुमसे ये आसानी से हो जाएगा, राइट. नाउ सी, इन नीट people say that level of questions are very low, right? That is not true, but mathematics involved is very less, right? But they will ask you the concepts. तो concepts में you are no less than JEE. जितने concept JEE में हम पढ़ाते हैं, same concept we teach in NEET also, right? But the level of question in terms of mathematics involved will be slightly less. अब देखो इस question में कोई भी mathematics involved नहीं है, right? Concept is involved. So if you are good with concept, you can solve it. तो बताओ मुझे आंसर क्या होगा. चलो लेट मी एक्सप्लेन, राइट. तुमने पढ़ा होगा इन वेक्टर्स ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, सबने पढ़ा होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. उसमें क्या होता था, लेट्स से यू हैव टू फोर्सेस, मान लो ये एक ऐसा फोर्स है, ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, एक्सक्यूज मी फॉर दैट. तो मान लेते हैं एक ऐसा फोर्स है, राइट, दिस वन इधर है, ये कोई भी पी फोर्स, राइट, पी फोर्स, एंड देन लेट्स से यू हैव अ सेकंड फोर्स क्यू, ऐसा इस डायरेक्शन में, राइट, पी एंड क्यू. If you want resultant of these two forces, तो resultant हमें कैसे मिलता है? The third closing side of the vector of the triangle, the third closing side of the triangle gives you the resultant. But resultant का जो sense होगा, that is opposite to these two forces. What do I mean? देखो P and Q का जो sense है, जो order है, वो कुछ ऐसा है, देखो ऐसे जा रहे हैं वो, right? ऐसे draw कर लेते हैं छोटा सा. We said that resultant is the third closing side. Third closing side मतलब ये वाला. But sense should be opposite. मतलब अगर ये ऐसे जा रहा था, then it will be something like this. मतलब जो resultant का direction है, resultant vector, that is something like this. Okay, देखो P and Q ऐसे are, right? Opposite, isn't it? अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Here you have three forces. Resultant पे तो बाद में बात कर लेंगे. First of all, you have three forces. मान लो ये वाला पहला फोर्स, राइट, लाइक दिस, ओके, पहला फोर्स, सेकंड फोर्स लाइक दिस, ओके, ये वाला. रिजल्टेंट कहां पे होना चाहिए? हाउ शुड बी द रिजल्टेंट? ऐसे होना चाहिए रिजल्टेंट, देखो ध्यान से, दिस शुड बी द रिजल्टेंट, राइट. थर्ड क्लोजिंग साइड बट इन ऑपोजिट सेंस. ये दो फोर्सेस तो ऐसे जा रहे थे ना, सो रिजल्टेंट शुड गो लाइक दिस, ऑपोजिट सेंस में. तो ये आपका रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन के साथ. अग्री, राइट? फॉरगेट अबाउट दिस फोर्स नाउ. इन दोनों फोर्सेस का ये रिजल्टेंट होगा, राइट, ऊपर की तरफ, इजंट इट? आई होप इट इज विजिबल टू यू क्लियरली, ऊपर की तरफ. एंड द थर्ड फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड, आपने कैसे अप्लाई किया? जबरदस्ती नीचे की तरफ, इजंट इट? थर्ड फोर्स ये क्या कर रहा है? रिजल्टेंट को इक्वली एंड ऑपोजिट, राइट, उसको अपोज कर रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, बिकॉज लेंथ तो इक्वल है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इजंट इट? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, राइट, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, बिकॉज रिजल्टेंट को अपोजिट करने के लिए एक फोर्स है आपके पास, राइट, उसको अपोज करने के लिए इक्वली, राइट. तो ऐसे सोचना होता है गाइस, राइट. सो रिजल्टेंट को अपोज कर दिया, नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो. एंड व्हेनेवर नेट फोर्स इज जीरो, वेलोसिटी क्यों चेंज होने लग गई, राइट? वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड. तो ये इसका आंसर था, ओके. सो स्लाइट ऑफ कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड, राइट, नॉट मच, बट यस, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते हैं, राइट. आई होप यू आर एंजॉइंग. Yes, so the block of mass m is being pulled by a horizontal force. ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, ठीक है. So he is saying that there is a block of mass m. Mass m दे दिया ब्लॉक का, okay, and ये पुली से ऐसे स्ट्रिंग है, right, and you are applying a force of 2 mg here. 2 mg हमने फोर्स लगाया. Then what he is asking, what is the value of force exerted by the supporting table on the pulley? अब सपोर्टिंग टेबल कौन है? ये बेचारा, राइट. He will apply the force, it will apply the force, isn't it, on the pulley. ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा देखते हैं अभी ध्यान से, राइट. देखो, the common mistake that everyone makes, right, most of the student make is, वो ऐसा लिखते हैं, सर यहां से mg, ये टेंशन और mg और टेंशन इक्वल, तो टेंशन भी mg, राइट, they will like this. तो मतलब होता है ये, किसी से भी हो सकता है mg, तो यहां से भी फोर्स mg. This is completely wrong. ओके, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा यहां पे. सबसे पहले तो क्या नहीं होना चाहिए वो समझ लेते हैं. क्या होगा वो समझना तो आसान होता है, राइट. कोई भी बता देगा क्या होगा, बट क्या नहीं होगा दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. चलो देखो ध्यान से लिखना. देर इज अ फोर्स 2 mg एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट. ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करा देगा, isn't it? So this mass
must be accelerating because there is a net force acting on the system, right? देखो यहां से नीचे कितना फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली वो तो mg ही लग रहा है, राइट? उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, यहां से तो mg is acting, but there is a 2 mg force in this direction, है ना? तो whole system is accelerating. ये मास कहां जा रहा होगा? ऊपर, ये बेचारा ऊपर जा रहा होगा, some acceleration a, right? How much is that acceleration a? आप निकाल सकते हो वो सब तो, बट एक यहां पे छोटा सा पॉइंट है, वो आपको समझ में आ गया, देन क्वेश्चन इज डन. व्हाट इज दैट पॉइंट गाइस? यहां से अगर 2 mg है तो यहां से भी तो 2 mg ही होगा, isn't it? बिकॉज पुली इज फ्रिक्शनलेस, मासलेस, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो टेंशन रिमेन सेम, राइट? ये भी 2 mg ही होगा, isn't it? तो टेंशन जो हम mg लिख रहे थे पहले, विल नॉट राइट दैट एज mg, और यहां पे टेंशन आ जाएगा 2 mg. अब आप देख लो ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा. एफ नेट इक्वल टू ma, तो नेट फोर्स कितना? mg, राइट? वहां से ma है ना? तो दिस इज 2 mg एंड दिस इज 2 mg. नाउ इफ यू सी दिस पुली, ये वाला जो पुली है, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस. यहां से 2 mg, राइट? एंड ऑल्सो डाउनवर्ड्स ये वाला फोर्स विच इज ऑल्सो 2 mg, है ना? ये भी 2 mg. तो एक नेट फोर्स होगा, राइट? ऐसे नेट फोर्स, यही नेट फोर्स तो ये टेबल बैलेंस करेगा. This table has to apply this net force only. तो when you have 2 forces at 90 degree, आप कैसे निकालते हो नेट? नेट का क्या फॉर्मूला होता है? If you want resultant or net, and when you have 2 forces in 90 degree, वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर. That's it, है ना? डन. तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 2 root 2 mg, right? So answer should be 2 root 2 mg. So those who got, congratulations, those who got this answer, right? Great job. चलो चलो आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव अहेड. हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम गाइस. ट्राई करो आप लोग सबसे पहले तो, यू कैन पॉज द स्क्रीन, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है? लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ. देखो ध्यान से, सिस्टम शोन इन द फिगर इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट. रेस्ट पे है वो, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है. स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस. नाउ द स्ट्रिंग इज कट, एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट विल बी. ठीक है, देखो ध्यान से, वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज देयर इन स्प्रिंग्स. ठीक है, स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं. सो व्हेन यू हैव अ स्प्रिंग एंड ये व्हेन यू वांट टू राइट डाउन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, राइट? या फिर फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, तो हम क्या लिखते हैं? देखो, लेट्स से दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है, इस बेचारे का नेचुरल लेंथ है ये. इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट, तुमने इस पे कोई फोर्स लगा दिया ऐसे, और तुमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, राइट? एलोंगेट कर दिया. ये उल्टी स्प्रिंग बन गई, वैसी बना लेते हैं ना जैसी थी. ठीक है, तो तुमने इसको थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया, लेट्स से बाय सम लेंथ x. तो फोर्स कितना लगाती है स्प्रिंग? k इंटू एक्स, राइट? माइनस k इंटू एक्स, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होता है. अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे है देन फोर्स विल बी अपवर्ड्स, वो अपोज करेगा उसको, राइट? सो फोर्स इज माइनस k टाइम्स x. ये सबको पता होगा, isn't it? Means force of the spring depends on दिस डिस्प्लेसमेंट, राइट? नेचुरल लेंथ से आपने कितना कंप्रेस या कितना एलोंगेट किया हुआ है उसको, isn't it guys? वो उस पर डिपेंड करता है. सो आई कैन से कि अगर मैं x को चेंज नहीं करूंगा, इफ आई विल नॉट चेंज द x मोमेंटरली, राइट, इंस्टेंटेनियसली, देन फोर्स ऑल्सो विल नॉट चेंज, है ना? वेरी सिंपल पॉइंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अगर x चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स ऑल्सो विल नॉट चेंज. नाउ बाय हैविंग दिस आइडिया यू कैन जस्ट डू दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स. देखना ध्यान से. सो देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है? 2 मासेस आर देयर, राइट? ये 2m और ये m. तो स्प्रिंग पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग इज मासलेस, राइट? स्ट्रिंग इज मासलेस. तो स्प्रिंग जो टोटल वेट को बैलेंस कर रहा है दैट इज 3m, राइट? 2m और m, तो 3m. तो इस मोमेंट पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा 3 टाइम्स m इंटू g, है ना? बिल्कुल सही है, 3 टाइम्स m इंटू जी. ठीक है, वो तो लग रहा था, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं. उसके बाद क्या हुआ? कोई आया, है ना, आपके जैसा नोटोरियस किड, उसने इसको काट दिया, राइट? इसको कट कर दिया. द मोमेंट यू कट इट, इसका तो फ्री फॉल होगा, है ना? ये तो जी से नीचे आएगा, isn't it? m विल कम विद g, फ्री फॉल. तो एक आंसर तो आपको मिल गया, ये g डाउनवर्ड्स और g डाउनवर्ड्स, मतलब 2 ऑप्शंस ही हो सकते हैं. b और c को तो भूल ही जाओ, है ना? सबसे पहले तो, क्योंकि जो m वाले का एक्सेलरेशन है दैट शुड बी g डाउनवर्ड्स. ठीक है, अब देखो 2m का क्या होगा. अब इस 2m के पास बड़ी दुविधा सी है, राइट? फर्स्ट स्प्रिंग वाज अप्लाइंग 3 mg फोर्स, सब कुछ सही था, लाइफ एकदम सही चल रही थी, सब कुछ बैलेंस था, इक्विलिब्रियम पे था, राइट?
बट नाउ व्हाट हैपेंड, अब ये नेट वेट जो है नीचे की तरफ वो कम हो गया. नाउ हाउ मच इज द नेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन गाइस? 2 mg ओनली, राइट. पहले जो 3 mg था, मतलब यहां पे तो 2 mg ही था, राइट. बट स्प्रिंग के लिए जो नेट नीचे की तरफ लग रहा था वो 3 था पहले, अब वो 2 हो गया क्योंकि ये मास कट के दूर चला गया, isn't it? बट स्प्रिंग के पास दुविधा है, ये बोलेगा कि अभी मेरी लेंथ तो चेंज हुई ही नहीं है, राइट. आई हैव नॉट चेंज्ड माई लेंथ इवन स्लाइटली, राइट, बिकॉज वी आर लुकिंग एट दिस इंस्टेंट ओनली, राइट. तो उसका लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. सो हाउ कैन ही चेंज दिस एफ? सिंपल पॉइंट, राइट. तो ये F will remain same because just now we have seen if the length of the spring does not change, the force applied by the spring is not going to change, right? चलो, तो 3 mg तो 3 mg ही रहेगा उस मोमेंट पे, बट ये बन गया 2 mg अचानक से, राइट. तो हाउ मच इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? एक्चुअली नेट फोर्स कितना है इस पे? 3 mg और 2 mg, मतलब mg अपवर्ड्स है ना. दिस इज द नेट फोर्स. ये तो आता है ना 3 mg ऊपर 2 mg नीचे, तो mg अपवर्ड्स इज द नेट फोर्स. अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए इसका, देन व्हाट विल यू राइट इफ यू वांट द एक्सेलरेशन? नेट फोर्स अपॉन द मास ऑफ द ब्लॉक, राइट. नेट फोर्स अभी देखा कितना है? mg. एक सेकेंड, या सो नेट फोर्स इज mg और मास 2m, राइट. मास तो 2m है ब्लॉक का, isn't it? तो m और m लड़ लिए वो, है ना, कैंसिल आउट हो गए. आंसर इज g/2 अपवर्ड्स. ठीक है, तो दिस इज द आंसर A. g/2 से ये ऊपर जाएगा और ये g से नीचे. यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज दिस, राइट. कोई ब्लॉक रखा हुआ है, स्प्रिंग है, द मोमेंट यू डिक्रीज द वेट ये ऊपर जाएगा, राइट. स्प्रिंग विल ट्राई टू पुल इट अप. ठीक है, चलो गाइस, ओके, गुड. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आगे बढ़ जाते हैं. अब देखो, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, बॉडी पे, हैज वेलोसिटी एट t = 0 सेकेंड as this, right? हमें velocity vector is given at t = 0 second, and then he says at t = 10 second velocity ये हो जाती है, मतलब velocity change हो रही है, right? First it was like 6i minus 2j cap, now it is 6j cap only. Finally after 10 second force पूछ लिया, isn't it? Easy है बहुत, right? देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, just go with the basics. सबसे पहले आपको पता है acceleration क्या होता है? Average acceleration, change in velocity upon time, right? और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन वेक्टर इफ आई एम राइटिंग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितनी है गाइस? 6j. लिख दो इसको यहाँ पे, राइट. 6j माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस वन 6i माइनस 2j. तो माइनस करेंगे तो 6i एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस 2j, राइट. ये तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम कहाँ है? टाइम कहाँ है? ये रहा टाइम, 10 सेकेंड, राइट. सो 10 सेकेंड इज द टाइम, राइट. दिस इज एक्सेलरेशन. उसने क्या पूछा आपसे? उसने आपसे पूछ लिया फोर्स. तो फोर्स विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन, है ना. तो इसको बस आप मास से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, और मास कितना है? 5 kg. तो ये हो गया आपका 5 kg, isn't it? Now see 6j plus 2j 8j and this is minus 6i. और ये 5 और 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 2 नीचे, राइट. तो देखो 6j plus 2j 8j डिवाइडेड बाई 2 4j. तो ये तो 4j है ना. एंड माइनस 6i डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3i. तो माइनस 3i प्लस 4j इज योर फोर्स वेक्टर, है ना. यहां पे भी वेक्टर लगा दो, इसको तिलक लगा दो, है ना. सो फोर्स वेक्टर इज माइनस 3i प्लस 4j. दिस इज द आंसर. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? जल्दी से देख लो, ये रहा. ओके, तो देखो गाइस, इन फिजिक्स इफ यू विल गो विद द बेसिक इक्वेशंस याद है आपको, राइट. कैसे अप्लाई करना है ये याद है, यू कैन डू वंडर्स, आई एम टेलिंग यू. ओके, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. हाँ, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. आई विल टेल यू 2 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस. तो सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम पढ़ लो अच्छे से, राइट. एलिवेटर शोन इन द फिगर डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास ऑफ ब्लॉक A इज गिवन, जो कि 0.5 है ना. एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक A ऑन ब्लॉक B इज, ही इज आस्किंग दिस, राइट. और ब्लॉक B का भी मास दे रखा है उसने 1 kg, राइट. चलो करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस. तो अगेन देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस. वी कैन ब्रिंग द सूडो फोर्स ऑल्सो इन द पिक्चर, राइट. अब सूडो फोर्स क्या होता है गाइस? व्हाट इज सूडो फोर्स? सूडो फोर्स एक्ट्स व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट. वो फ्रेम जो एक्सेलरेट करता है, दैट इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब देखो ये ब्लॉक्स जो है A एंड B, दे आर केप्ट इनसाइड दिस एलिवेटर, और एलिवेटर ही एक्सेलरेट कर रहा है, राइट.
सो दे आर केप्ट एट नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सूडो फोर्स लगा सकते हैं। नाउ हाउ मच इज द सूडो फोर्स देन? जो सूडो फोर्स होता है एफ सूडो ऑन एनी बॉडी इज गिवन बाय मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। यही होता है ना, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो इफ आई एम राइटिंग दिस फॉर ए पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो लगेगा मास ऑफ बॉडी, ए लिख लो यहाँ पे, ठीक है, एम बी से कंफ्यूज हो जाओगे। सो एम ए लिख लेते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं, एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, अगर मैं ए के लिए लिख रहा हूं तो, राइट। तो लेट्स मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो सूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है उसके ऑपोजिट, ठीक है। तो देखो अगर ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, व्हाट डू वी गेट, राइट। तो सबसे पहले ए का जो mg है वो लग रहा होगा नीचे, isn't it, mg। अब देखो ये a जो है वो b पे बैठा हुआ है ऊपर, राइट, b के ऊपर, तो इट विल अप्लाई सम फोर्स ऑन b। तो b भी चुप नहीं बैठेगा, राइट, b विल आल्सो अप्लाई अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो b जो लगाएगा वो है नॉर्मल फोर्स, और यही नॉर्मल फोर्स a भी b पे लगा रहा है, राइट। द सेम फोर्स a इज अप्लाइंग ऑन b एंड द सेम फोर्स ही इज आस्किंग आल्सो, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक A ऑन ब्लॉक B। तो बेसिकली वो नॉर्मल ही पूछ रहा है आपसे, isn't it? He is asking normal only। तो देखो ये mg n एंड बिकॉज दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स आ गया, राइट। और सूडो फोर्स कितना गाइस, बताओ जल्दी से, सूडो फोर्स कितना? मास ऑफ A विच इज 0.5, एक्सेलरेशन विच इज 2, 0.5 इंटू 2 1। कौन सा डायरेक्शन में? ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट, तो ऊपर 1, ठीक है। और mg की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10, जी को 10 ले लेते हैं, राइट। तो 0.5 इंटू 10, तो ये कितना हो गया? 5। तो हाउ मच विल बी नॉर्मल नाउ? फोर्स बैलेंस कर लो ना, डाउनवर्ड्स 5, अपवर्ड्स 1, तो नॉर्मल कितना बच गया? नॉर्मल को 4 होना पड़ेगा एनी हाउ, है ना। सो द आंसर फॉर नॉर्मल इज 4 न्यूटन। ये तो हुआ सूडो से, राइट, दिस इज फ्रॉम सूडो। व्हाट एल्स यू कैन डू इज, तुम ऐसे भी बना सकते हो ए का फ्री बॉडी डायग्राम कि ये ए है, राइट, डाउनवर्ड्स फोर्स इज 5, वो तो रहेगा ही 5, देन देयर इज अ नॉर्मल फोर्स एंड देन इट इज एक्सेलरेटिंग विथ 2 बिकॉज पूरा सिस्टम 2 से एक्सेलरेट कर रहा है, isn't it? उसके साथ साथ तो इतना आ जाएगा, राइट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू फील हियर, राइट, बिकॉज फिजिक्स में फील बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच इज द नॉर्मल फोर्स? वी गॉट 4 न्यूटन, राइट। हाउ मच वॉज द मास ऑफ द बॉडी? 5 न्यूटन। इफ यू गो इन अ लिफ्ट, है ना, जो एलिवेटर्स लगे होते हैं बिल्डिंग्स में, इफ द एलिवेटर इज गोइंग डाउन और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, अचानक से ऐसे नीचे जाएगा, यू कैन फील दैट वेटलेसनेस, है ना, ऐसा तुमने कभी फील किया होगा, आई नो, वेटलेसनेस यू कैन फील बिकॉज नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेस। जो तुम्हारा वेट है उससे कम फोर्स दैट एलिवेटर इज अप्लाइंग ऑन योर बॉडी, राइट। तो अगर इसका एक्सेलरेशन हम g के बराबर कर दें तो नॉर्मल फोर्स 0 भी हो जाएगा, दैट इज नोन एज फ्री फॉल, राइट, पूरा वेटलेसनेस 0, है ना, कुछ भी फील नहीं होगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं गाइस। Object weighs 40 kg, hangs at rest, find the tensions in the 3 strings। अब देखो these kind of problems are just based on force balance, है ना। तुम्हें क्या आना चाहिए? वेक्टर्स आना चाहिए और फोर्स बैलेंस करना आना चाहिए, that's it। तो I'll just tell you how to do this, ठीक है, देखो ध्यान से। So there are 3 strings, T1 यहाँ का टेंशन है, T2 is the tension of this string and T3 is the tension of this string, ठीक है। T3 बता दो कोई भी, anyone get the T3, right? Exactly 400 न्यूटन हो जाएगा बिकॉज देखो यहां से जो भी वेट लगेगा नीचे, G assuming as 10, तो ये जो वेट होगा इस बॉडी का दैट इज 400 न्यूटन एंड दिस हैज टू बी बैलेंस्ड बाय दिस स्ट्रिंग। तो एनीवे मतलब T3 तो बहुत आसान है, राइट, पूछना भी नहीं चाहिए था। चलो 400 न्यूटन। नाउ द क्वेश्चन कम्स फॉर T1 एंड T2, वो हम समझते हैं कैसे करना चाहिए, राइट। तो ये एंगल 53, एंगल 37। I hope you guys know the values of 53 and 37, मतलब cos 53, sin 53, cos 37, sin 37. I hope you already know that, right? Even if you don't know, मैं बता देता हूँ because these angles are important for us, right? When you are solving a numerical for JEE or NEET, ये angles हमें दिखते हैं very frequently, okay? तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, just imagine one triangle, ठीक है, एक triangle imagine करो, ऐसा कुछ, ये triangle कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि लेट्स से दिस साइड इज 4 एंड दिस साइड इज 3, ये वाला 4 है और ये वाला 3 है, ओके। तो पाइथागोरस से ये वाला साइड क्या हो जाएगा? 5, है ना, सिंपल है बहुत, 4 3 5। अब जो मैं बता रहा हूं वो रट लेना, राइट, जस्ट रिमेंबर दिस।
क्या रिमेंबर करना है आपको? व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस एंगल इज 53 डिग्री एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री. ओके, सो इफ यू रिमेंबर दिस ट्राइंगल, तुम्हें सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी. जैसे बताओ यहां से cos 37 कितना होगा? टेल मी गाइस. cos 37 बताओ, 4/5 है ना, ये बेस हो जाएगा एंड दिस इज द हाइपोटेनस, सो 4/5. सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू cos 5. ठीक है, चलो, दिस इज द वैल्यू, इजंट इट? अब देखो, आई विल राइट डाउन द इक्वेशन, यू विल सॉल्व इट, राइट? देखो, तो ये टेंशन इस तरफ लगेगा T1, राइट? दिस इज अगेन वन टेंशन T2. ठीक है, अब देखो यहां से जो फोर्स लग रहा है T3, वो कितना है? 400 न्यूटन. इफ आई मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं. ठीक है, तो देखो दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है अपना, देयर इज अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 400. ठीक है, देयर इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन विच इज T1 और इसका एंगल कितना है गाइस? 53. एक फोर्स इस तरफ है विच इज T2, ये एंगल बड़ा बन गया, डोंट माइंड. ओके, एंड दिस इज 37. ठीक है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है. हाउ डू आई सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? कैसे सॉल्व करेंगे इनको? वेरी सिंपल अप्रोच, राइट? यू जस्ट हैव टू टेक द कॉम्पोनेंट्स. जैसे ये T1 जो है इस तरफ, इसका एक कॉम्पोनेंट आएगा इस तरफ, राइट? Component in this direction, that will be T1 cos 53, isn't it? तो सेम पॉइंट if I draw here, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं. इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा T1 का cos कंपोनेंट, यानी कि T1 cos 53. अंडरस्टूड, राइट? T2 का cos कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, ऑपोजिट टू दिस, सो दिस विल बी T2 cos 37. है ना? बिल्कुल सही है. ऊपर भी ऐसा ही होगा, बट ऊपर साइन आ जाएगा, राइट? सो T1 का कंपोनेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो कितना? T1 sin 53, isn't it? और T2 का कंपोनेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, T2 sin 53, T2 sin, सॉरी 37, राइट? 53 नहीं है, वो एंगल 37, isn't it? एंड वन डाउनवर्ड फोर्स नीचे 400, राइट? दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट पॉइंट आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शंस. अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है हमें? We just have to balance these, right? बैलेंस करना बस इक्वेशंस को. तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, right? So you will get one equation from here. That equation will be T1 cos 53, right? Equal to T2 cos 37. First equation, right? You have all the values, cos 37, 53 and all, right? दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? This net upward force should balance out this downward force, right? तो जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो कितना है? T1 sin 53, right? sin 53 plus T2 sin 37. So T2 sin 37 and this should be equal to 400. है ना? This should be equal to 400. अब देखो this equation you can solve, right? Answer will come 320 and 240. ठीक है? I remember the answer. Answer will come for this it will be 320 and this will be 240. ठीक है? तो आप बस ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो. Physics is up to here only. After this we have maths, right? Which you can do very easily, right? तो हमें क्या सीखना था यहाँ से? How to take the components, right? Vertical component, horizontal component लेना है और दोनों को बैलेंस करना है, isn't it? चलो, let's take the next question, guys. ये देखो आप क्वेश्चन. In the figure shown, a person wants to raise a block lying on the ground, a height of h. हाइट h तक उसको ऊपर उठाना है, राइट? इन बोथ द केसेस इफ टाइम रिक्वायर्ड इज द सेम, देन इन विच केस ही हैज टू एक्सर्ट मोर फोर्स, ही इज आस्किंग, राइट? दोनों ही में टाइम रिक्वायर्ड इज सेम, हाइट इज सेम, राइट? किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग. जस्ट थिंक गाइस, इन विच वन यू विल नीड मोर फोर्स. सोच के देखो एक बार. चलो, लेट मी एक्सप्लेन नाउ. ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, फ्री बॉडी बना लो आप, राइट? तो अगर इसका मास इज m, राइट? तो यहां से कितना फोर्स लग रहा है? mg, राइट? दिस फोर्स इज mg. तो ये टेंशन भी कितना हो जाएगा? mg, क्योंकि यहां पे अभी ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, isn't it? we are talking about the equilibrium position, right? तो mg t, तो यहां से भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको? इक्वल टू t, राइट? क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन चेंज नहीं हो रहा, एंड दैट विल बी इक्वल टू mg ओनली, है ना? बट इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा? इफ दिस इज सम फोर्स mg, है ना, then on this pulley, because it is having two strings, वो divide हो जाते हैं forces, right? So this mg will be divided here in two parts. तो mg by 2, mg by 2
और इसको कितना लगाना पड़ेगा, अगेन सेम स्ट्रिंग, सो mg/2 हो गया क्वेश्चन, राइट. सो ही हैज टू अप्लाई हाफ ऑफ द फोर्स व्हाट ही हैज टू अप्लाई, है ना. सो दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ पे इसके पास कुछ मैकेनिकल एडवांटेज है. दिस इज इंजीनियरिंग टर्म, राइट, मैकेनिकल एडवांटेज. लेस एफर्ट एंड यू कैन लिफ्ट मोर फोर्स, राइट, मोर वेट, इजंट इट. चलो बढ़िया. सो वी आर नियरिंग गाइस, थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हुए, राइट, बी विथ मी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल. ओके, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस. ये आप एक बार ट्राई करो जल्दी से. If two pulley arrangements are shown in the figure are identical, mass of the rope is negligible, right? He is asking in A case, ये वाला जो केस है, यहाँ पे there is a mass m and there is a mass 2m, right? In this case, by the way, ये mass m ही है, but you are applying a force of 2 mg, right? He is asking what is the ratio of accelerations in two cases. ठीक है, हमें बताना है the ratio of acceleration in two cases. ध्यान से सोचो, बताओ मुझे आंसर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई नो मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस ऑप्शन, राइट, 1:1, क्योंकि तुमने एक ट्रिक रिमेंबर किया होगा, इजंट इट. चलो कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन गाइस. बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, राइट. दिस इज नॉट समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देखो ध्यान से. यू मस्ट बी नोइंग दैट ट्रिक फॉर पुली प्रॉब्लम्स. तुमने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि यहां से द फोर्स एक्टिंग इज 2 mg, isn't it? और यहां से द फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg, राइट. 2 mg एंड mg. इफ वी राइट डाउन द नेट फोर्स, वो वाला हम करते हैं ना, इसको ओपन कर लेते हैं. दिस इज m एंड दिस इज 2m. दिस इज अ ट्रिक, isn't it? अब यहां से फोर्स कितना लग रहा है, 2 mg इस तरफ, यहां से फोर्स लग रहा है mg इस तरफ, राइट. सो इफ यू वांट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, आप क्या करोगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. नेट फोर्स कितना है, 2 mg माइनस mg, दैट इज mg ओनली, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, वो कितना है, 3m, राइट. यहां पे वो 3m है, तो 3m मतलब एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आ गया है ना, g/3. ठीक है, इन दिस केस. अब आपको लगता है, यू टेंड टू थिंक दिस, दैट सेम फोर्स इज एक्टिंग हियर ऑल्सो. हियर ऑल्सो 2 mg, देयर ऑल्सो 2 mg, acceleration same, 1:1, you will give this answer, but that is completely wrong, isn't it guys? देखो ध्यान से. Though this thing will remain same, the net force will remain same, but the mass of the body is changing, right? The total mass of the body is no more 3m. The total mass of the body is only m, है ना. दिख रहा है ये, नेट फोर्स सही है, नेट फोर्स इज mg ओनली, यहां से 2 mg और यहां से mg. So net force on the system is mg only, but mass अब हो गया m only, right? तो acceleration कितना guys? mg divided by mg only, है ना. This is a wonderful question. तो if you take the ratio, ये 1/3 और वो 1 है, तो ratio will come as 1/3 only, right? So 1:3. This is the answer. Okay. So that's it guys for today, right? We have solved some problems. I hope you understood everything. Next session we are going to have rigid body dynamics, and as I told you, if you want some other topic, if you are having some difficulty in some other topic, please let us know in the comment box, right? And please subscribe to the channel because sharing is caring, right? Isn't it? And knowledge will increase when you share it.